ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہاں محبت کا نام لینا بھی ایک جرم تھا، مگر مجھ سے یہ جرم بار بار ہوا، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جرم کی مجھے اس قدر بھیانک سزا بھی مل سکتی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی محبت کا نام اپنے لبوں پر نہ لاتی۔ کاش مجھے اس سے محبت ہی نہ ہوتی اور نہ میرے ساتھ وہ سب ہوتا جس کا تصور بھی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ میرا نام روحی ہے اور میں اس وقت 13 سال کی تھی جب مجھے پہلی بار کوئی اچھا لگا تھا۔ میں تب 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور وہ ہماری گلی میں ہی رہتا تھا۔ اس کی امی ہمارے گھر آتی جاتی تھی کیونکہ میری اماں اور آپا اس کی امی سے اپنے کپڑے سلواتی تھیں۔ وہ لوگ ہمارے محلے میں 2 سال پہلے ہی رہنے آئے تھے۔ ان کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں تھا۔ اس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بہن اور وہ 2 بھائی اپنی امی کے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے اسے پہلی بار تب دیکھا تھا جب میں اسکول سے گھر آ رہی تھی اور گلی کے شرارتی بچے ایک کتے کو پتھر مار رہے تھے، جس سے ڈر کر میں بھاگی تو میرا پیر ایک پتھر سے لگا اور میں گرنے لگی تو وہ ایک دم مجھے بچانے آ گیا اور پہلی نظر میں ہی مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے ایک مسکراہٹ میری طرف اچھال دی تو میں نے بھی جواباً اسے مسکرا کے دیکھا۔ اس کے بعد اسکول آتے جاتے میں اسے اور وہ مجھے دیکھنے لگا۔ ویسے تو میں اسکول ایک تانگے پر آیا جایا کرتی تھی، مگر گھر جس گلی میں تھا وہ بہت تنگ تھی، اسی لیے تانگا گلی کے باہر ہی کھڑا رہتا۔ بس تانگے سے اتر کے گھر تک کا راستہ ہی تھا جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ وہ ایسی عمر تھی جس میں محبت یا پسندیدگی کے معنی تک معلوم نہیں تھے، لیکن بس وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس کی اماں میرے گھر آیا جایا کرتی تھیں تو کبھی کبھی وہ بھی اپنی اماں کے ساتھ کپڑوں کا شاپر پکڑے آ جاتا، مگر وہ کبھی دروازے کے اندر نہیں آیا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں عورتیں سخت پردہ کرتی تھیں۔ میرے دادا کی برادری میں بہت عزت تھی، اسی لیے ہمارے گھرانے کو بہت معتبر مانا جاتا تھا۔ دادا کی طبیعت میں جو رکھ رکھاؤ تھا وہی میرے ابا کے حصے میں آیا، مگر ابا نے اپنے گھر کے کچھ اصول ایسے بنا لیے جن کو توڑنا ناممکن تھا۔ ہمارے گھر میں ابا اماں کے علاوہ میری آپا اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ابا کا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا اور گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز مل جایا کرتی تھی۔ ابا اپنی دکان سے لڑکے کے ہاتھ سبزی وغیرہ بھیج دیتے جو گھر کے بیرونی دروازے سے ہی سامان دے کر لوٹ جاتا۔ گھر میں ایک جز وقتی ملازمہ بھی تھی جو صبح سے شام تک گھر میں رہتی اور اسی سے ہمیں محلے کی خبریں ملا کرتی تھی۔ اسی نے کپڑے سینے کے لیے ماجد کی اماں کا ہماری اماں سے ملوایا تھا۔ میری اماں پڑھی لکھی نہیں تھی، بہت سادہ خاتون تھی اور آپا نے میٹرک کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ رشتے کے انتظار میں اپنی زندگی کے دن ضائع کر رہی تھی کیونکہ ابا کے معیار پر کوئی رشتہ نہیں اترتا تھا اور مجھے تو لگتا تھا کہ آپا ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہ جائیں گی، نہ ابا کو کوئی رشتہ پسند آئے گا اور نہ ہی آپا رخصت ہو کر پیا دیس جائیں گی۔ اور تو اور ابا کی مرضی کے بغیر ہم دونوں بہنیں تو کیا اماں بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ آپا کے بعد میں تھی جو آپا سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اماں کہتی ہیں کہ آپا ان کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور پھر میں آپا سے بھی 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی، جبکہ میرا بھائی مجھ سے 1 سال ہی چھوٹا تھا۔ میں شہر کے سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھی، جبکہ میرے اکلوتے بھائی کو ابا نے شہر کے بڑے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا کیونکہ ان کے مطابق اسی نے آگے چل کر گھر اور کاروبار کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ آپا تو اللہ میاں کی گائے تھی، بالکل اماں جیسی، نہ اپنے حق کے لیے بولنا نہ کسی چیز کی خواہش کرنا، بس جیسے کوئی بے جان چیزیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ وہ دونوں بالکل ایسی ہی تھیں، مگر میں ان کے جیسی تھی نہ مجھے ان جیسا بننا تھا۔ ابا نے اپنی مرضی کے مطابق مجھے سرکاری اسکول میں بھیج تو دیا تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے بھی آپا کی طرح میٹرک کر کے گھر بٹھا لیا جائے گا اور پھر میں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی۔ اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ زندگی میری ہے تو میں اپنی مرضی سے جیوں گی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اپنے اس جیل نما گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے گھر کے گھٹن زدہ ماحول کی وجہ سے اتنی کم عمر میں اس راہ پر چل نکلی تھی۔ اسکول سے آتے جاتے ہی میں نے پہلی بار ماجد کو خط لکھا اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے تھما دیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے جواب دیا جس میں اپنا نام وغیرہ بتایا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال آگے یعنی میٹرک میں تھا
और फिर यहीं से ये सिलसिला चल निकला। अब माजिद अपनी अम्मा के साथ कपड़ों का शापर लेने या देने आ जाता तो तब भी मैं चोरी छुपे उसे देखती, मगर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा तक न था। मैं दोपहर के वक्त अपने घर की छत पर गई हुई थी, क्योंकि वहाँ मैंने माजिद को उसकी छत पर मिलने के लिए बुलाया था। माजिद का घर हमारे घर से 2 घर आगे था। इतनी दूर से बात क्या होती, मगर बस हीरो हीरोइन बनने का शौक चढ़ा था। धूप तेज थी, इसीलिए किसी का छत पर आने का इम्कान भी न था, और अब्बा तो दोपहर के वक्त अपने कमरे में आराम फरमाया करते थे, मगर किस्मत ही ख़राब हो तो क्या कहा जा सकता है। मैं अभी माजिद के साथ इशारों में बातें करने में मसरूफ़ थी कि अचानक अब्बा की गरजदार आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, और फिर उसके बाद अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए नीचे ले गए। अम्मा ने मुझे 2 थप्पड़ तक लगा दिए। अब्बा ने खूब हंगामा किया कि ये लड़की अभी से हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकालना चाहती है। फिर अब्बा ने मुलाजमा के हाथ पैगाम भिजवाकर माजिद की अम्मा को घर बुला लिया और उनकी बहुत बेइज्जती की। उनके बेटे को आवारा और जाने क्या कुछ कहा, यहाँ तक कि मोहल्ला छोड़कर जाने की बात भी कह डाली। और ऐसा ही हुआ। माजिद की अम्मा किसी फसाद के डर से चंद दिन में ही मोहल्ला छोड़कर चली गई। अब्बा ने मेरा स्कूल आना जाना बंद कर दिया था, मगर माजिद के यहाँ से जाने के बाद जाने क्या सूझी कि मेरा स्कूल दोबारा से शुरू करवा दिया गया। मैं पहले की तरह स्कूल जाने लगी, मगर मुझे अपनी पहली मोहब्बत के इस तरह अधूरा रह जाने का बहुत अफसोस था। बल्कि मुझे तो अफसोस ये था कि मैं अब इस घर से कैसे जल्दी आज़ाद हो सकूंगी। इस वाक़ये के बाद मैं तरह तरह के मंसूबे बनाने लगी, मगर मेरा हर मंसूबा नाकाम रहा। आखिरकार मज़ीद 2 साल गुजर गए और मैं मैट्रिक में आ गई। इस दौरान आपा के कई रिश्ते आए, मगर अब्बा ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। मुझे तो अब्बा की अजीबो गरीब शराइत और मयार के तकाजे समझ नहीं आते थे। उनके मुताबिक उनकी बेटियां ऐसे घरों में ब्याह कर जानी चाहिए जो मुकम्मल पर्देदार भी हों और कारोबार समेत घर भी जाती हो, और तो और ज़ात बरादरी भी वही हो जो हमारी थी। भला ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अगर बरादरी से रिश्ता आता तो कारोबार नहीं होता था उनका, अगर घर अपना था तो उनके यहाँ पर्दे का रिवाज नहीं था। बस इसी तरह जाने कब तक अब्बा आपा के लिए आने वाले रिश्तों को ठुकराए जाएंगे। आपा 27वें साल में थी। उनकी गुलाबी रंगादप बेरौनक होती जा रही थी और आंखों की चमक भी मांद पड़ रही थी, मगर अब्बा को कोई नहीं समझ सकता था। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि मैट्रिक मुकम्मल होते ही घर बैठ जाना और घरदारी सीखना। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब अब्बा ने ही अम्मा को कहा होगा, मगर मुझे भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग और ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके पीछे लड़कों का कॉलेज था, और मेरी क्लास की बहुत सारी लड़कियों की दोस्ती लड़कों से थी। एक सहेली की वजह से एक लड़के से मेरी दोस्ती 2 माह पहले हुई थी। वो 12वीं क्लास में पढ़ता था। पहले पहल उससे बातचीत का कोई ज़रिया नहीं था, सिर्फ गायबाना तारुफ था, मगर फिर मेरी सहेली के ज़रिए उस लड़के के साथ ख़तो किताबत का सिलसिला शुरू हो गया। उसका नाम फ़हद था। वो अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत लड़का था और एक अच्छे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। जब अम्मा ने मेरे स्कूल छुड़वाने की बात की तो मैंने ख़त में फ़हद को सारा हाल लिख सुनाया। उसने जवाब में लिखा कि फ़िक्र मत करो, मैंने सब सोच रखा है। फिर ऐसा ही हुआ जैसा फ़हद ने सोच रखा था। जब 2 माह बाद मेरे इम्तहान हो गए और इम्तहानों से फारिग होने के बाद मैं घर बैठ गई तो मुझे फ़हद की याद सताने लगी। उससे बातचीत का कोई ज़रिया भी न था। और फिर जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आना था उस दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल गई। वहीं रास्ते में स्कूल के करीब ही फ़हद ने एक पैकेट मुझे दिया और ख़ुद जल्दी से वहाँ से चला गया। मैंने वो पैकेट अपने बैग में छुपा लिया और बेचैनी से घर आकर जब खोला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। उस पैकेट में मेरे लिए एक मोबाइल फ़ोन और सोने की चेन थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन चेक किया तो उसमें सिम और फ़हद का नंबर भी सेव था। मैंने खुश होकर उसे मैसेज कर दिया कि रात को देर से कॉल करूँगी, और फिर ऐसा ही हुआ। रात का खाना खाकर जब सब घर वाले अपने अपने कमरों में चले गए तब मैंने भी अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके फ़हद को कॉल की और सारी रात उससे बातें करती रही। मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी। उस रात उसने मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ें की और हमने साथ ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे सपने एक साथ देखे। मैंने फ़हद को अपनी तस्वीरें भी भेजी। उस रात मुझे उससे बात करके एहसास हुआ कि मुझे फ़हद से बहुत मोहब्बत है। फिर तो बस हर रोज़ रात को उससे बात करके सारा दिन उसके ख़्यालों में गुजरने लगा था।
अब मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मुझे अब्बा आगे पढ़ने देंगे या नहीं। अलबत्ता ये सोच सोच कर मेरा खून खुश्क होता रहता था कि अब्बा मेरी शादी फहद से होने देंगे या नहीं। स्कूल छोड़े और फहद से फ़ोन पर राब्ता किए 2-3 माह गुजर गए थे। फहद ने बताया था कि उसका ताल्लुक़ एक अमीर ख़ानदान से है, उन लोगों का अपना बिजनेस है, इसलिए फहद को नौकरी वगैरह की कोई टेंशन नहीं, बल्कि वो 1-2 महीने में ऑफिस आना जाना शुरू कर देगा और अपनी तालीम भी जारी रखेगा। मैंने फहद से कहा कि वो अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दे ताकि हमारी मंगनी हो जाए और फिर शादी 1-1.5 साल तक हो जाएगी। फहद ने मुझसे वादा किया कि वो जल्द ही अपनी फैमिली को भेजेगा और मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगी जब फहद का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। और फिर उस बात के 2-3 हफ्तों बाद फहद ने वादे के मुताबिक अपनी फैमिली को रिश्ते की बात करने के लिए मेरे घर भेजा। फहद का घराना अमीर होने के साथ साथ बहुत मॉडर्न भी था। रिश्ते की बात करने फहद के पापा, मम्मा और बड़ी बहन आई थी। बड़ी बहन शादीशुदा थी। फहद की अम्मी और बहन ने साड़ियाँ पहन रखी थी और खूब तैयार शयार होकर जेवरात से लदी हुई हमारे घर पहुँची। वो लोग अपने साथ बहुत सारे तहाइफ, फलों और मिठाई की टोकरियाँ और गुलदस्ते भी लाए थे। अब्बा ने जैसे ही फहद की अम्मी और बहन को देखा, एक नागवार सा तासुर अब्बा के चेहरे पर आकर रुक गया। मेरी अम्मा जल्दी से फहद की अम्मी और बाजी को अंदर लाउंज में ले गईं और फहद के अब्बू मेरे अब्बा और भाई के साथ बैठक में चले गए। मेरे घर वाले उन लोगों की अचानक आमद से हैरान भी थे और अब्बा को तो गुस्सा भी था कि मेरा उन लोगों से राब्ता कैसे हुआ या किसने उनको यहाँ रिश्ते के लिए भेजा। खैर, जब उन लोगों ने रिश्ते की बात छेड़ी तो फहद की अम्मी ने साफ कह दिया कि फहद और रूही एक दूसरे को पसंद करते हैं और बच्चों की पसंद में ही हमारी मर्जी है, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं। अब्बा ये बात सुनते ही आग बगोला हो गए और उन्होंने फहद के घर वालों को खूब बातें सुनाई कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में रिश्ता लाने की। अब्बा ने यह भी ना सोचा कि वो लोग मेहमान हैं, बेइज्जती करके उनको घर से जाने का कह दिया। फहद के घर वाले शदीद गुस्से में घर से चले गए और उनके जाने के बाद मेरी क्लास लग गई। अब्बा ने पूछा कि वो लोग यहाँ कैसे आए, किसने भेजा ये रिश्ता। मैं साफ मुकर गई। मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे हुआ ये सब, और शायद मेरी किसी सहेली के जानने वाले होंगे। मैंने अपनी बातों और आंसुओं से अब्बा अम्मा को यकीन दिलाया और उनको ये भिनक तक ना लगने दी कि मेरे पास फ़ोन भी है। अब्बा अम्मा को यकीन तो आ गया, मगर मुझे भी ये साफ पता चल गया कि अब्बा मेरे रिश्ते में भी आपा की तरह ही करेंगे और मैं भी आपा की तरह बैठी अपने बालों में चांदी उतार लूँगी, क्योंकि यही हो रहा था। मेरी आपा 30 साल की होने वाली थी। उनके बाद सफ़ेद होना शुरू हो गए थे और उनकी शख्सियत ख़त्म होती जा रही थी। मुझे तो लगता था जैसे वो कोई ज़िंदा लाश है जिसे अपनी फ़िक्र है ना परवाह। उस रात जब मेरी फहद से बात हुई तो फहद ने मुझसे बहुत गिले शिकवे किए कि तुम्हारे अब्बा अम्मा ने मेरे वालिदैन की बहुत बेइज्जती की है, सब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मैंने फहद को बहुत मनाया और झूठ कहा कि उसके घर वालों के जाने के बाद अब्बा ने मुझे बहुत मारा पीटा है। ये सुनकर फहद का दिल पिघल गया और वो मुझसे नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगा। फहद से बातचीत का सिलसिला चलते हुए मज़ीद 2 माह गुजर गए थे जब हमारी ज़िंदगियों में एक तूफ़ान आया और आपा को बहा कर ले गया। हुआ कुछ यूँ कि आपा का एक रिश्ता अब्बा के जानने वालों के घर से आया था। लड़का बल्कि आदमी की उम्र 45 साल के करीब थी और उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। छोटे छोटे 2 बच्चे थे। अब्बा को ये रिश्ता बहुत माकूल लगा। बकौल अब्बा के शरीफ आदमी हैं और पर्देदार घराना है। अब्बा ने आपा की मर्जी और खुशी का ख्याल किए बिना आपा का रिश्ता 2 बच्चों वाले उस आदमी से कर दिया और सादगी से निकाह 1 माह बाद होना करार पाया। ये सब मुझ समेत आपा और अम्मा के लिए भी काबिल कबूल नहीं था। अम्मा और आपा की तो हिम्मत नहीं थी अब्बा के सामने बोलने की, पर मैंने अब्बा से दबी दबी आवाज़ में जब ये बात की तो अब्बा ने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इन मामलात में ना पड़ो। और फिर वही हुआ जो अब्बा चाहते थे। 1 माह बाद आपा का निकाह उस आदमी से करके अब्बा ने आपा को रुखसत कर दिया। आपा बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर ब्याह कर चुपचाप अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ यहाँ से चली गई और फिर जब भी घर आती पहले से ज़्यादा खामोश होती। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की वे खुश हैं या नहीं, तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती कि मेरे अब्बा और मेरे बच्चों के अब्बा खुश हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। आपा जब भी आती थी दोनों बच्चे उनके साथ होते थे और आपा को अम्मी अम्मी कहकर पुकारते। आपा भी पूरी तरह उनकी माँ बन चुकी थी, मगर मेरे लिए ये सब किसी सूरत भी काबिल कबूल न था।
क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला फहद के कहने पर कर लिया। लेकिन मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि मेरा ये फैसला मुझे किस मंजिल पर ले जाएगा। हुआ कुछ यूँ कि एक रात प्रोग्राम सेट करके मैं फहद के साथ घर से भाग गई। रात के आखिरी पहर सब सो रहे थे और मैं दबे पांव घर से निकलकर अपनी मोहब्बत की दुनिया आबाद करने चली गई। मगर जो हुआ वो मेरी सोच से बहुत ऊपर की बात थी। फहद मुझे लेकर अपने किसी दोस्त के घर चला गया और अगले दिन हमने उसी दोस्त के घर में निकाह किया। उसके बाद फहद मुझे अपने घर ले गया, जहाँ मेरा इस्तकबाल तानों और तंजियां जुमलों के साथ किया गया। फहद के माँ बाप एक शादीशुदा बहन जो रिश्ता लेकर आई थी और एक बहन कंवारी थी वहाँ रहती थी। उसके अलावा फहद का एक बड़ा शादीशुदा भाई भी था, जिसकी बीवी यानी मेरी जेठानी बहुत तेज़ मिजाज की औरत थी। मुझे मेरी सास से लेकर नंदों ने और जेठानी ने भी बातें सुनाई। किसी ने मुझे बहू के रूप में कबूल ना किया। ये सारा रवैया देखकर मैं कमरे में जाकर रोने लग गई तो फहद ने मुझे तसल्ली दी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरा ससुराली घर बहुत बड़ा और आलीशान था। घर में एक से बढ़कर एक सहूलत और आसाइश मौजूद थी, मगर मेरा वजूद बिल्कुल किसी बेकार शय जैसा था। जिस दिन मैं निकाह करके वहाँ गई थी, उस दिन से अगले 2 दिन तक मुझसे किसी ने बात करना गवारा न किया। मैं अपने कमरे में पड़ी रहती। फहद सुबह को अपने पापा और भाई के साथ ऑफिस चला जाता और शाम को लौटता था। घर में कई मुलाजिम थे, जिनमें से एक मुलाजमा मुझे मेरे कमरे में खाना दे जाती। यहाँ तक कि रात का खाना भी मैं अपने कमरे में अकेली खाया करती थी और फहद अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर बैठकर खाना खाता था। मैं उससे गिला करती तो वो कहता कि अभी कुछ दिन सब्र से काम लो, मैं सबको मना लूँगा, तब तक कमरे में ही रहो। जब मुझे यहाँ पूरे 5 दिन गुजर गए तो छठे दिन मैंने सोचा अगर ऐसे ही कमरे में पड़ी रही तो ये लोग मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। ये सोचकर मैं उस दिन दबे पांव कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि लाउंज में मेरी सास के पास एक औरत बैठी है जो मेरी सास को जाने कौन सी पटियाँ पढ़ा रही थी और किसी मसले के बारे में उसका हल बता रही थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो एकदम तेज़ आवाज़ में पूछने लगी कि ये कौन है। मेरी सास ने अजीब से अंदाज में जवाब दिया कि यह हमारे फहद की पसंद है, जिसे घर से भगा कर लाया है। वो औरत मेरी सास की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और मुझे मिलने के लिए उठी। उस घर में आने के बाद ये पहले इंसान थी जिसने मुस्कुरा के मुझसे बात की। उसने मुझे वहीं अपने पास बिठा लिया। दरअसल वो पड़ोसन थी जिसका घर में बहुत आना जाना था। हालांकि वो भी ऐसे ही किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर बिल्कुल मिडिल क्लास औरतों की तरह बात करती थी और उसके अंदाज से नहीं लगता था कि वो पढ़ी लिखी या अमीर घर की औरत है। उसकी दोस्ती मेरी सास से थी। मैं बैठी हुई उसकी बातें सुन रही थी जब मेरी जेठानी वहाँ आ गई और उसने मेरी सास के कान में कुछ कहा। मेरी सास ने उसकी बात सुनकर मेरी तरफ देखा और हुक्म देने वाले लहजे में कहने लगी कि आज रुकैया अपने शौहर और बच्चों समेत आ रही है, इसलिए जल्दी उठो और जाकर किचन में उनके लिए खाना बनाओ। रुकैया मेरी वही शादीशुदा नंद थी और अब मुझे खाना बनाने का हुक्म दिया था, जबकि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। मैंने परेशानी के आलम में सास से कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हुई और मुझे मेरे कमरे में जाने का कहा और ये भी कह दिया कि आइंदा अपने कमरे से बाहर ना निकलना। ये सब मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था। मुझे उस रोज़ अब्बा अम्मा बहुत याद आए और मैं सोचने लगी कि शायद मैंने बहुत गलत फ़ैसला किया है। मैं फहद का इंतज़ार करने लगी और जब शाम को वो आया तो रो रो कर उसे बातें सुनाई। मेरे रोने से वो परेशान हो गया और मुझे कमरे से बाहर ले गया। वहाँ सब मौजूद थे और मेरी नंद अपने बच्चों और शौहर समेत बैठी थी। मुझे देखते ही सबकी तेवरी चढ़ गई, मगर अब मैंने भी सोच लिया था कि ढीठ बनकर सबके दरमियान में ही रहना है और इस घर में अपनी मजबूत जगह बनानी है। उस दिन के बाद मैं धड़ल्ले से कमरे से बाहर आने जाने लगी। खाने की मेज़ पर सबके साथ बैठकर खाना खाती। जो दिल करता वो मुलाजमा से बनवा कर खाती पीती। लेकिन मेरी सास, नंद और जेठानी का रवैया वैसा का वैसा ही रहा। बराबर वाली पड़ोसन नज्जो आपा मुतवातर घर में आया जाया करती थी और मुझसे बड़ी खुश होकर मिलती। वही थी जो मुझसे बात कर लिया करती थी। मुझे ससुराल में 1 महीना हो गया था। मुझे कोई खबर नहीं थी कि पीछे मेरे अब्बा अम्मा और बहन भाई कैसे हैं। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि उनसे राब्ता करती। दूसरी तरफ ससुराल में इतने दिन गुजारने के बाद मैंने एक बात नोट की कि पड़ोसन नज्जो आपा मेरी सास के पास भी बैठकर खुसर फुसर करती थी और मेरी जेठानी के साथ भी उसके राज़ो न्यास चलते थे।
वहीं मेरी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान ने पहली दस्तक दी जब मुझे महसूस हुआ कि फ़हद का रवैया 1 महीने में बदलता जा रहा था। वो अब बेजार सा नज़र आता था और मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। मैं बाकी सबके रवैयों से तो अब परेशान नहीं होती थी, मगर फ़हद के मिजाज में आने वाली इस तब्दीली ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं जानबूझकर ऐसी बातें करती, कभी फरमाइशें करती, मगर फ़हद अब मुझे इनकार करने लग गया था। मेरी कोई बात सुनना मानना तो दूर, वो तो अब मुझे आंख भर के देखता तक नहीं था। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि जिसके लिए मैंने अपना घर बार, अपने माँ बाप को छोड़ा, वो 1 महीने में ही बदल जाएगा। मैं परेशान रहने लगी। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी सास और जेठानी मेरी बड़ी नंद की तरफ गई हुई थी। घर में मेरे और छोटी नंद के अलावा कोई नहीं था। वो अपने कमरे में थी और मैं लाउंज में बैठी थी जब पड़ोसन नज्जो आपा आ गई। मुझे अकेला देखकर बेइंतहा खुश हुई, जैसे वो किसी मौके की तलाश में थी। वो मुझसे कहने लगी कि जो तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे नाखुश हैं, मेरे पास इस मसले का पक्का हल मौजूद है। अगर तुम चाहो तो सब अच्छा हो सकता है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और खुश भी। मैंने उसे फ़ौरन कहा कि मैं सब कुछ करूँगी, बताओ क्या करना है। उसने जो बताया वो बहुत अजीब था, मगर मैं हर कीमत पर अपने शौहर और ससुराल वालों को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी। वो कहने लगी कि एक वजीफ़ा है मेरे पास जो तुम 15 दिन करोगी, मगर शर्त है कि नहाना नहीं है 15 दिन। देखना कैसे सब तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। मैंने उसकी इस अजीब सी शर्त सुनी तो सोच में पड़ गई, मगर फिर सोचा कि 15 दिन की तो बात है, मुझे कर लेना चाहिए। यही सोचकर मैंने उसे कहा कि वजीफ़ा बता दे, मगर उसने कहा कि वजीफ़ा करने के दौरान तुमने ना तो अपने शौहर के करीब जाओगी और ना इस बात का जिक्र अपने ससुराल में किसी से करोगी। साथ ही उसने कहा कि वजीफ़े के दौरान रोज़ाना 5,000 रुपये मुझे देने होंगे, तभी वजीफ़ा काम करेगा। मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं था, फिर भी मैंने सारी बातें मान ली और उसने मुझे वजीफ़ा बताया। वजीफ़ा करने के लिए मुझे रोज़ छत पर आधी रात के बाद जाना पड़ता था। शुरू के 2-3 दिन तो बहुत डर लगा, मगर फिर हिम्मत के साथ छत पर जाने लग गई। वजीफ़े में पूरा आधा घंटा लगता था। इस दौरान मैंने खुद ही फ़हद से दूर रहने की कोशिश की, उससे बात करना छोड़ दी, मगर मेरे लिए सबसे मुश्किल काम रोज़ाना 5,000 का इंतज़ाम करना था। अब तक फ़हद ने मुझे जेब खर्च के नाम पर जो पैसे दिए थे वो 20-25 हज़ार थे, जिससे 4-5 दिन का सदका मैंने नज्जो आपा को दे दिया। वो रोज़ शाम के वक्त हमारे घर आया करती थी। मुझे अब तक ये मालूम नहीं था कि नज्जो आपा के घर में कौन कौन है या वो पैसे किसे देती है। मैं तो बस अंधाधुंध अपने काम में लगी हुई थी। जब 5 दिन गुजर गए तो छठे दिन से 5,000 रोज़ के निकालने का मसला बन गया। मैंने बिना कुछ कहे फ़हद के वॉलेट से पैसे निकालने शुरू कर दिए। इस तरह करते करते 15 दिन गुजर गए। 16वें दिन मैं नहाई और नज्जो आपा का इंतज़ार करने लगी, मगर वो अगले 4-5 दिन मुझे दिखाई न दी। 15 दिन गुजरने के बाद भी मेरे ससुराल या फ़हद के रवैये में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। मैंने सोचा इतनी मुश्किल से सब कुछ किया, मगर फ़ायदा क्या हुआ। मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि कब नज्जो आपा आए और मैं उससे बात करूं, मगर वो ना आई। तो एक शाम मैंने उसके घर जाने का फ़ैसला किया और जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। फ़हद नज्जो आपा के घर बैठा था और उसके साथ एक जवान लड़की बैठी बातें कर रही थी। वो दोनों बड़े खुश लग रहे थे। अचानक उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो कह रही थी कि फ़हद, अब जल्दी से उस लड़की को तलाक दे दो। तुमने अपनी माँ, बहन और बाप की बेइज्जती का बदला लेना था, सो ले लिया, और देखो उसने कैसे हज़ारों रुपए तुम्हारे वॉलेट से चुरा चुरा कर मेरी मम्मा को दिए हैं। वो अच्छी लड़की नहीं। ये सब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और अगले ही लम्हे फ़हद की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, हाँ बिल्कुल, वो इस लायक नहीं कि उसे अपनी बीवी बनाकर रखूं। आज रात ही तलाक के कागजात उसे थमा के चलता करूँगा। ये सब मैंने कैसे सुना और कैसे अपने कदमों पर वहाँ से बाहर निकली, ये मैं ही जानती हूँ। मगर मैं ससुराल जाने की बजाय अपने अब्बा के घर जाने के लिए रिक्शा करवा के उसमें बैठ गई। सारे रास्ते मेरे आंसू बहते रहे और मैं सोचती रही कि माँ बाप को दुख देने का अंजाम ये होता है, और किसी गैर औरत की चालबाजी पर अंधा यकीन करके जाने कौन से वजीफ़े करती रही, जबकि मुझे सिर्फ अपने रब पर भरोसा होना चाहिए था। मैं रोते रोते बाप की दहलीज पर जा पहुंची। इत्तेफाक से वहाँ आपा भी आई हुई थी। मुझे देखते ही सबसे पहले अब्बा दौड़े आए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। अम्मा भी और आपा भी रो रही थीं। पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ कर दिया था। शायद सारे माँ बाप के दिल एक ही जैसे होते हैं। किसी ने मुझसे कोई सवाल न किया और मेरे यहाँ आने के 3 दिन बाद मुझे तलाक के कागजात मिल गए।
जिस पर अब्बा ने कहा कि वो लोग तुम्हारे काबिल थे ही नहीं बेटा। ये कहकर मुझे तसल्ली दी और मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरी इद्दत पूरी होते ही अब्बा ने मेरा निकाह आपा के इस देवर से कर दिया। उस निकाह के बाद मुझे मालूम हुआ कि इज़्ज़तदार और बाहया लोग कैसे होते हैं। आपा अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थीं और मुझे भी मेरे शौहर से इज़्ज़त और कदर मिली, तो मैंने अपने रब और वालिदैन का शुक्र अदा किया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।